امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو. کئی دفعہ ایک لفظ ہم بولتے ہیں کہ جذبات کی لہ میں یا جذبات کے بہتے ہوئے یا بہتے ہوئے جذبات میں ہم یہ بات کر جاتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ چائنا کا اسرائیل ہے. یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے انہوں نے ایک بات چھوڑی ہے. وہ واشنگٹن میں تھے اور نیو یارک میں تھے اور وہاں پہ وہ جو کونسل آن فارن ریلیشنز ہے وہاں پہ کوئی بات کر رہے تھے. پتہ نہیں انہوں نے کوئی کتاب پڑھ لی ہے. وہ بیسیکلی ایک آتھر ہیں, بڑا زبردست آتھر ہیں ویسے, اور انہوں نے بڑا اچھا بک لکھی ہے اینڈریو اسمال, جس میں وہ چائنا پاکستان ایکسس کی بات کرتے ہیں, ایشیاز نیو جیو پالیٹکس. اچھی بک ہے, شاید پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے, پڑھنی بھی چاہیے. انہوں نے اپنے ایک انٹروڈکشن میں ایک چائنیز کسی جنرل کا نام لگا دیا کہ پاکستان از چائناز اسرائیل. اب اسرائیل از ناٹ نون فار سم تھنگ گڈ. اب ہوتا کیا ہے نارملی اس میں یہ ہے کہ یہ میں آپ کو بات بتاؤں, اسرائیل از نون فار نٹوریس تھنگس. اسرائیل کو امریکہ ضرور پروٹیکٹ کرتا ہے. اسرائیل از پاورفل ان سو مینی ویز. اسرائیل نے عربز کو بڑے جو ہے نا ڈنڈے مارے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ واٹ ایور دی اسرائیل ہیز ڈن وی شوڈ بی لیبلڈ ود اٹ. اب وزیر اعظم صاحب نے کہا جی کہ وہ جی وی بیسیکلی کال دس ویری پور لینگویج. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو وزرائے اعظم ہیں یا پالیٹیشینز ہیں, ان کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے فارن پالیسی ایشوز کی. میرا خیال ہے دے نیڈ ٹو گو بائی دا بک, دے نیڈ ٹو گو بائی دیر ٹاک اور دیر پوائنٹس جو انہوں نے وہاں پہ کیے ہوتے ہیں. اب ہوا یہ کہ انہوں نے ایک سی ایف آر میں ڈسکشن کرتے ہوئے کہہ دیا جی پاکستان جو ہے نا وہ چائنا کا اسرائیل ہے, اور پاکستان کی کوئی اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ, اور ہم بڑے کلیئر ہیں, ہمارے لیے چائنا کی بڑی امپورٹنٹ ہے, پاکستان کوالیفائی کرتا ہے چائنا کا اسرائیل کے طور پہ, ٹھیک ہے جی. اور اس نے کہا کہ کاکڑ صاحب نے, ہمارے وزیر اعظم نے کہا, انہوں نے کہا میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو امریکہ کو نظر آ جائے گا, امریکہ کو کیونکہ اسرائیل کا پتہ ہے, سو میں یہ انالوجی اس لیے ڈرا کرنا چاہتا ہوں. اوکے ہمارے اب ظاہری بات ہے کاکڑ صاحب از فرام بلوچستان. بلوچستان میں چائنا نے کافی پیسے لگائے ہیں, اور ابھی ریسنٹلی جو 10 سالہ تقریبات ہوئی ہیں اس میں تو یہی بات ہوئی تھی کہ 25-26 ارب ڈالر ابھی تک پچھلے 10 سالوں میں بلوچستان میں انہوں نے لگائے ہوئے ہیں. اور یہ بھی کہا جاتا, بلاول بھٹو زرداری نے اس 25 ارب ڈالر کے لگنے کے بعد کہا تھا کہ دس از اے کاسٹ آف ڈیولپمنٹ. کئی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان از امنگ دوز کنٹریز with چائنیز ڈیٹ ٹریپ ڈپلومیسی جو ہے دیٹ از ایٹ اٹس پیک, بیکاز پاکستان ہیز ٹو پے مور دین $30 billion ان چائنیز لونز. تو وہ ہمیں اور پھر ہم کو ساڈے کہتے ہیں کسے رہنے ہر پاس ادھروں ساڈا جناب ٹائٹ کر رہا ہے, کوئی ادھروں ٹائٹ کر رہا ہوتا ہے ہمیں. تو یہ جو چیز ہے یہ obviously that's very something very absurd. Obviously the leadership needs schooling in foreign policy. یہ ایک جنرل تھے, جنرل شانگ ان کا نام تھا آئی تھنک, اور کیا چائنا کی پاکستان کی جو زیادہ تر جو ڈسکشن ہے وہ تو سیکریٹو ہے, ساری سیکریسی ہے. ہم ہیں بڑے فارمل الائز, چائنا ہمارے ڈیفنس کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری جو جسے وہ کہتے ہیں نا, یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارا جو کامن دشمن ہے وہ انڈیا ہے, لیکن چائنیز ڈو ناٹ کنسیڈر دس. پاکستان کا بڑا دل کرتا ہے کہ انڈیا ساڈے نال کھلوے, سوری چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہو فار دی اینیموسٹی اور یہ کرنے کے لیے, لیکن چائنیز نہیں مانتے. ان کو پتہ ہے کہ ان کو انہوں نے اور کاروبار ہی کوئی نہیں سوائے لڑائیاں تو. اور since 76 years of this country we have fought wars, we remained engaged in wars, we fought proxy wars, we remained proxy for decades. 1948, 65, 71 Cold War, war against terrorism, کارگل, اے ہون پتہ نہیں کون کون سی جنگیں لڑ رہے ہیں ہم. تو وہ جنگیں بھی لڑ رہے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم لڑ بھی رہے ہیں. اتنی تو جنگیں ہم نے لڑ دی ہیں, اور ہم ہمیشہ جو ہے نازک دور میں رہتے ہیں. سو وہ ابھی کیونکہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں کہ ہم چائنا کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو اچھے طریقے سے فریم کریں. میں بہت زیادہ یہ بار بار ایک چیز کہہ رہا ہوں اور کہتا رہا ہوں کہ we should not let the world to look us from Chinese lens. If the world which is looking us from a Chinese lens, and if they keep looking us from a Chinese lens, تو ساڑی خیر کوئی نہیں. پوچھو کیوں؟ دیکھیں پچھلے 50 سال پاکستان is known for whatever is going on in Afghanistan.
ठीक है जी। अब हम क्या है, हम भी उधर, अगर हमें अब चाइना ने जो है वो अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उन्होंने नेटवर्क्स बनानी है, पोर्ट्स बनाने हैं, पाइपलाइंस हैं, रोड्स हैं, रेलवे कनेक्ट करनी है, गैस फील्ड है, मिडल ईस्ट तक जाना है, पता नहीं क्या क्या जो उन्होंने वो करना है। ठीक है, हम रास्ते में आ गए, सानू ही उन्होंने कुछ सड़क साफ छू दी हैं। ठीक है, थैंक्स टू द चाइनीज फॉर ऑल दिस इन्वेस्टमेंट दे हैव डन। मतलब हमें तो कर्जे के थले तो असी आ गए, लेकिन हमारा को 5-7 जड़े ना 7 साल कुछ हमारे पिज़्ज़ा वाले भाईजान लै गए, कुछ हमारे और जगहों में चले गए, कुछ हमारे लग गए, कुछ हमारी जो है वो एटलीस्ट जिसे कहते हैं ना पंजाबी साढ़े कहते हैं झाका देना, अस झाका देंदे रहे हैं कि लो जी पैसे लगते हैं आते हैं पै। सो वो हम कुछ हम FDI में लगा देते थे जी, हमारी इस साल $3 अरब की FDI है, इस साल $4 अरब FDI है, नहीं जी इकॉनमी ठीक चल रही है, नहीं जी ये हो रहा है, नहीं वो हो रहा है। सो दिस वाज अ वेरी पुअर लैंग्वेज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। पाकिस्तान जो है ना वो कोई अपार्थाइड स्टेट नहीं है, पाकिस्तान जो है वो कोई वेली स्टेट नहीं है, पाकिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंट्री, द वर्ल्ड considers पाकिस्तान एन इम्पॉर्टेंट कंट्री। सो इफ़ द प्राइम मिनिस्टर हैज़ रेड अ बुक, दैट डजंट मीन कि आप उस बुक की कॉपी पेस्ट कहीं चला दें और कहें कि जी ये मैं जो है ना ये गल की थी है। और बहुत ज़्यादा अब पाकिस्तान में तो मीडिया तो नहीं दिखाता इस तरह की बातें, सारी बात है एक खौफ ही होंदा है अमूमन लोगों को, नहीं नहीं ये ना होवे PM साहब गुस्से हो जान, आगू PM को पैसे भी लेने होंदे ने, वो क्या होता है जो ये एडवर्टाइजमेंट के पैसे जो होते हैं जो लेते हैं सारे, ये जो क्या होता है TV शीवी ये वो। तो और दूसरा ये है कि हमारे क्योंकि मीडिया को फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ का इतना पता भी नहीं है, और हमारे जो मीडिया हाउसेस के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं ये भी, उन बेचारों को भी वो ट्रेनिंग स्कूलिंग नहीं है फॉरेन पॉलिसी इश्यूज़ की। जब उन्होंने कोई शो वो करना होता है, वो भाईदे फिरदे ने डिप्लोमेट्स के पीछे ढूंढ रहे होते हैं, कोई ऐसे बंदे ढूंढ रहे होते हैं जो उनको थोड़ा बहुत वो बता सकें। ठीक है जी। सो ये जिसे वो कहते हैं ना ये चीज़ जो है ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट है, और हमें इसराइल से लेबल कर दीजिएगा आप। ठीक है जी। अब वो जो बुक है जो उसमें ये जो बात की गई है, एक चैप्टर शुरू में वो लिखते हैं पाकिस्तान इज़ चाइना इसराइल। अब उसको जो ले करके अगर हम ये कहें कि दिस इज़ व्हाट वी आर, मुझे लगता है उन्होंने अपने फॉरेन ऑफिस से नहीं पूछा, उन्होंने किसी से नहीं पूछा, वरना ये हो नहीं सकता कि फॉरेन ऑफिस उनको बताता ना, फॉरेन ऑफिस उनको बताना था, उन्होंने कहा सर ए गल ना करो, ठीक है इससे ये होगा वो होगा। अब जारी बात है वो एक इम्प्रेशन ये भी है काकड़ साहब का कि वो जनाब बड़े पढ़े लिखे बंदे हैं, बिल्कुल पढ़े लिखे बंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, थोड़े समझदार हैं, एक्टिव हैं, बड़ी मेहनत की हुई है, मिडल क्लास है, अच्छी अंग्रेजी अंग्रेजी भी बोल लेंदे ने, सारा कुछ कर लेंदे ने, बट दैट डजंट मीन कि आप अमरीका में जाकर उन्होंने कहो तो कि तुसी जिस तरह तुसा इसराइल रखे है ना, तो चाइना ने सानू इसराइल रखे है। ठीक ठीक है जी। अब ये देखें आप ये एक बड़ी वो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जी इसराइल ने जिस तरह थानू रखे है ना, तुसा इसराइल ने रखे है ना, असा भी रखे है। What a shame, in fact, for the Pakistani society, for the Pakistani people, that if we are treated, considered, looked like this, कि हम जो है वो ठीक है जी, ये सारी चीज़ें एक तो ये फॉरेन पॉलिसी वो इमरान खान साहब होंगे सन, वो की करते सन, वो बाहर आके रौला पा देते सन जो मर्जी, वो कह देते थे जी मुझे सऊदी अरब ने कहा है, वो UN में गए थे, उन्होंने शुरशरी छोड़ दी वहाँ पे, उन्होंने इमरान खान साहब ने शुरशरी छोड़ दी, उन्होंने क्या कि पायन मिन्नू जो है ना, मुझे तो उन्होंने कहा है, सऊदीज़ ने कहा है कि आप हमारी इसराइल से सॉरी ईरान से बात कराएं। तो उन्होंने कहा यार उन्होंने बाहर आके कह दिया, तो मुझे पता ये चला फ़ौरन जो हमारे लड़के होते हैं उनके साथ जो PM के साथ थे, उन्होंने कहा यार ये तो बात ही नहीं हुई थी, और ये खुद ही हमारे वज़ीर आज़म ने छोड़ दी, बाद में फिर सऊदीज़ को वो डिफेंड करना पड़ा, नहीं ऐसे है वैसे है तैसे है, और फिर वो जिस तरह वो सऊदीज़ ट्रीट करते थे प्राइम मिनिस्टर को लेटर ऑन, वो भी ज़ाहिर बात है एक हिस्ट्री है, अल्लाह माफ़ करे, एक बिस्ती वाली गल ही होंदी है ना, मतलब एंड पॉलिटिशियंस फॉरगेट वन थिंग। आप नरेंद्र जो मैं पॉइंट कहना चाह रहा था वो दे फॉरगेट वन थिंग, दे आर नॉट नथिंग इंडिविजुअली, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ कंट्री। उसका देखें नरेंद्र मोदी के मुँह तो कभी स्लिप ऑफ टंग वेखी, अपनी जो अगे लिखे होंदा वही पढ़ता, ना सज्जे होंदा ना खब्बे होंदा। द रीज़न बिहाइंड इज़ कि मतलब ही मस्ट हैव अ ग्रिप ऑन अ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, बाकियों को
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛਿਬੀਆਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ, but he is not good enough to poke when it comes to international politics, so he will go with the scripted बात करेंगे, animated, scripted, and for prime ministers they should be animated, and particularly if you are a caretaker prime minister, you should be animated. The reason behind is, and then giving a controversial statement and knowing that the entire American foreign policy jo hai at this moment, that is to contain China. They are putting a lot of money in India, they are putting a lot of money in Indo-Pacific, they are putting a lot of money everywhere just to attract more allies. तो आप उनको कह रहे हैं कि जिस तरह तुसा इजराइल रखे है ना, इंज ही सानू भी उन्होंने रखे है, एक ही रखे है, मतलब ये क्या होता है ये रखे है. सो दैट इज़ समथिंग आई थिंक वेरी एब्सर्ड है. और कई लोग तो पाकिस्तान में कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इसमें जो है माफ़ी मांगनी चाहिए, ही शुड अपोलोजाइज. और कई लोग कह रहे हैं नहीं खैर कोई नहीं, बेचारे गलती हो जाती है, बच्चा है हाली नवा नवा नौकरी लभी है, ठीक हो जाएगा, थोड़ा जा खाएगा तक. और यही होगा जितनी देर में प्राइम मिनिस्टर साहब तैयार शहर होंगे उन्हीं देर में हुकूमत और जानी है. ठीक है जी. सो ये हमें वेस्ट में कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, क्योंकि हमने जितना कर्जा चीन से ले लिया हुआ है, फिर हमारी सिक्रेसी के मामलात हैं. इंडिया, इजराइल और अमेरिका की सिक्रेसी है, हमें पता है. वो कह रहे हैं जी यही सिक्रेसी हमारे बीच में है. बट द पॉइंट इज इन अमेरिका एंड द इजराइल, दे आर डेमोक्रेट्स. Whatever they have is that comes in front of us. The Chinese are not democrats. That is an authoritarian state. They have nothing to do, वो जिसे कहते हैं ना, उनको इन चीज़ों से कोई नहीं है. अमेरिकन्स भी डेमोक्रेसी है, जैसी भी है, दे गो थ्रू पार्लियामेंट. वो सीक्रेटली क्या डील करते हैं, क्या करते हैं, दैट इज़ अनदर पॉइंट. बट दे आर पार्लियामेंट, दे हैव ए कांग्रेस, दे गो थ्रू ऑल दैट. ठीक है. सो ये हमारे वज़ीर आज़म साहब को भी इस चीज़ की समझ आनी चाहिए थी कि चाइना इज़ नॉट अ गुड कंट्री टू गिव एन एग्जाम्पल इन वेस्ट. चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को ज़रूर डिफेंड करें. एंड येस, वी नीड चाइना फॉर डेवलपमेंट, वी नीड चाइना, we need to engage them. They have helped us militarily, they have helped us in defense, they have helped us in diplomatically, they have helped us economically, they have helped us in so many ways, multilaterally. UN Security Council हर जगह हमारे साथ खड़े होते हैं. बट एवं नहीं असी कहने डिगू डिगू नहीं होई दा इस तरह की बातें करके जो है वो. और ख़ास तौर पे CFR सेंट्रल जो काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस है, ये मेरा ख्याल है ये फॉरेन अफेयर्स, और ये आई थिंक दैट इज़ फंडेड बाय द अमेरिकन सिस्टम का कि ये है. तो वो ऑब्वियसली जो भी इसमें बातें होती हैं वो सारी की सारी दे आर नोटेड एंड डिस्कस्ड पहले. क्योंकि चाइना के बारे में जो भी आप बोलेंगे ना जी, वो सारे का सारा जो भी आप चाइना के बारे में बोलेंगे वो सारे का सारा डिस्कस होगा. कुछ भी ऐसा नहीं है जो रह जाएगा. चाइना में के बारे आप जो बोलेंगे वो डिस्कस होगा, और उसकी सारी बात है, एक है वैल्यू है, वर्थ है. सो ये पॉइंट है. मैं चाहता हूँ कि हमारे वज़ीर आज़म साहब इस पे बेशक वो एक्सप्लेनेशन तो नहीं देंगे, उनसे लोग पूछेंगे अब. और पाकिस्तान में जब सवाल किया जाता था ना ही आँख मार देते ने, और ना पूछो बस ठीक है हो गया यार, ये जो बात होनी थी हो गई, आप छोड़ें इस चीज़ को, ये आप ज़्यादा इस चीज़ को लंबा ना करें. ठीक है. सो ये चीज़ है, मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ. एंड आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर को गलती का एहसास हो गया होगा, और फॉरेन ऑफिस को और हमारे वो जो वाशिंगटन में और UN में लोग बैठे हुए हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट डिप्लोमेट, और उन्होंने बड़ी सालों साल लगाए होते हैं. हमारे पॉलिटिशियन की बदकिस्मती ये है, उनको सुनते नहीं हैं. इनको शौक है लीडर बनने का. ये भुल जाते हैं कि वो 15-20 मिनट जिन्नी देर कैमरा ते माइक अगे लगे होंगे ना, तो भुल जाते हैं that we have to go back in a country from where we came. Yes, you came on a chartered plane, you are enjoying there, you should enjoy. Allah Pak has blessed you with this kind of a portfolio. It's a very important portfolio indeed. But at the end of the day, you have people back, and you are being watched. And ये जो अल्फाज हैं इनकी फिर कॉस्ट पे करनी पड़ती है स्टेट को. हमें चाइना के साथ ताल्लुकात बहुत ज़रूरी हैं. एंड वी, और वो हमारे चाइनीज़ जो हैं, हमारी साड़ियाँ बड़ियाँ फटीका चलते हैं. ठीक है. लेकिन हमें अमेरिका के साथ भी अपने ताल्लुकात को मेंटेन एंड बैलेंस करना है. हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमारे पॉलिटिशियन यहाँ पे एंटी वेस्ट बैशिंग करके वोट ले लेंगे ने, तो चीन के नाल अंदर खाते जड़ा ना गल्लां कर लेंगे.
کیونکہ وہ پھر کہتے ہیں جی ڈیموکریسی ہے نا، ویسٹ کیونکہ ڈیموکریسی سمجھتے، چائنیز ڈیموکریسی نہیں سمجھتے، چائنیز کے ساتھ تھوڑا بہت کرو وہ منہ اٹھا جاتے ہیں، وہ پھر تھوڑا نا پرائیویٹ میٹنگز میں بھی وہ منہ اٹھا جاتے ہیں. So that is the point. Thank you.